हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वकार। यूनिट चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करते हैं। नेम ऑफ चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। हम बात करेंगे कि व्हाट इज चार्ज। एक्चुअल में चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज and it is represented by capital Q or small q. Now what is the formula of charge? Formula of charge is Q is equals to I into T. Okay, now here I is electric current, T is time, Q is charge. And what is the unit of charge in SI system? Unit of charge is ampere into second or coulomb. It is also called coulomb, and coulomb is represented by capital C. Okay, now CGS unit of charge is ESU and EMU, and its smallest unit of charge that is Franklin, and biggest unit of charge that is the Faraday. There is a one relation ki what is the relation between Faraday and Coulomb. So what is 1 Farad is equals to 96,500 Coulomb. It is the relation between Faraday and Coulomb, and its dimension is A1 and T1. Okay, now next types of charge. There is two types of charge. First is positive charge and second is negative charge. What is positive charge? When any atom or molecule release the electron, there is greater proton and less electron as a compare of proton. So we can say that a positive charge have maximum proton and less electron. That means proton is greater than electron, so there is positive charge will be occur. And another is negative charge. And what is negative charge? In negative charge, electron is greater as a compare of proton. So we can say that proton is less than electron, so there is negative charge occur. When atom gain the electron, in this condition atom gain the electron, so there is amount of electron is greater as a compare of proton, so there is negative charge. Okay, important note, charge is a scalar quantity. Here important is charge is a scalar quantity. And next, what is the electroscope? Actual में electroscope is the device which is detect the presence of charge. It is a device which is used to detecting the presence of charge. And from this equipment or device we can understand that like charge repel to each other, unlike charge attract to each other. Okay, now our next method of charging. There is three types of method. First is friction, second is conduction, and third is induction. What is the friction? When rubbing to neutral body due to transfer of charge or electron, there is a charge will be occur on both bodies. one have positive charge and another have नेगेटिव चार्ज. कहने का मतलब जब कोई दो बॉडी को हम आपस में रब करेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. एंड another method is conducting method. So what is the conducting method? Conducting method is that when uncharged body contact to charged body. When uncharged body contact to charged body, so there is charge will be transfer uncharged body to charged body. So that is method of charging is called conduction method. Okay, now that is another is induction method. In this method, uncharged body is charged with opposite nature of charge by the charged body without any contact. That means there is important point is uncharged body near to चार्ज बॉडी. कहने का मतलब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो अनचार्ज बॉडी के अंदर पोलराइजेशन होगा और एक तरफ तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. दैट मीन्स पॉजिटिव, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को रिपेल करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे और यहाँ क्या जाएंगे आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. तो इस तरीके से हम इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राउंडिंग एंड हम यहाँ पे जो हमारे चार्ज पार्टिकल जो अनचार्ज बॉडी थी उसको चार्ज कर लेंगे. ये क्या होता है, हमारा इंडक्शन मेथड होता है. ठीक है. एंड
What is the properties of electric charge? First properties of electric charge is additivity of charge. So what is the meaning of additivity of charge? Additivity मीनिंग चार्ज होता है कि जो चार्जेस होते हैं किसी सिस्टम में उन सबको ऐड करना, यानी उन सबको जोड़ देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने यहाँ पे किया हुआ है कि अपना Q इज इक्वल्स टू क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस एंड क्यू एन, थ्री डैश 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 क्यू एन, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, सबको ऐड कर देंगे तो वो किस इक्वल हो जाएंगे, टोटल चार्ज इक्वल हो जाएंगे, जिसको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे, स्मॉल क्यू बोल दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब कोई भी जो सिस्टम होता है उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कहने का मतलब बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन there is no change in charge. That means example of that HCl, after ionization H have plus charge and Cl have minus charge, and total charge is 0. Before already total charge is 0, after that after ionization total charge will be 0, that means charge will be conserved, okay. Another example is NaCl. Ionization Na have positive charge and Cl have negative charge, and total charge Q is equals to 0, that there is also Q is equals to 0. That is the properties of electric charge, conservation of charge, okay. Now third point is very important, quantization of charge, integral multiple of fundamental unit of charge. That means जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो जिससे वो मल्टीपल होगा वो एक होल नंबर होगा, यानी जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, not 1/2, not in 1/3, that is not included in that, okay. There is Q is equals to N is the formula, N is the number of electron, and which is equal to 1 2 3 dash 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 dash, and charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19, and Q is the charge, okay. Now next is कूलाम्स लो। व्हाट इज़ कूलाम्स लो? जब कोई दो चार्ज एक रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जस्ट लाइक Q1 और Q2 दोनों रेस्ट कंडीशन में हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज दैट? इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दैट मीन्स दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके बीच में क्या, उसके साथ में क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट this Fe proportional Q1 Q2 upon R square, and when we remove proportional there is a constant which is K value of K is the 9 into 10 to the power 9, and unit of K Newton meter square upon Coulomb square. And what is the formula of K? That is formula is 1 upon 4 pi epsilon naught. There is epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity in vacuum, which formula is 1 upon 4 pi K, and which values is 4.8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square upon Newton meter square. And what is the vector form of this? The vector form is F is equals to K Q1 Q2 upon R square and R cap, okay. Now our next is topic is relative permittivity. What is relative permittivity? That is K or epsilon R represented by relative permittivity, and formula is epsilon m upon epsilon naught, okay. When we deduce definition from this formula, we can say permittivity in medium, ratio of permittivity in medium and permittivity in vacuum, okay. Now from this formula we can write it is like this: epsilon naught K is equals to epsilon m. So there is condition, if K is greater than 1, then epsilon naught is epsilon m, and another condition is K is less than 1, but it is not verified. It is not verified in this, so that's why we can write it, that is not important, and that is नेवर दैट, मतलब कहने का मतलब मेरा साफ ये है कि इस तरह की कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी, ओके। नाउ वैल्यू ऑफ के इज़ एयर 1 होता है, और वैल्यू ऑफ के ऑफ कंडक्टर दैट इज़ इनफाइनाइट। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके MCQ क्वेश्चन जो आने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एयर में जो एयर का होता है उसके के की वैल्यू क्या होगी, देयर इज़ 1, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के of conductor, that is infinite, okay. Now our next topic is principle of superposition for electrostatic forces. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग ये होता है कि किसी पॉइंट चार्ज पर जितने भी फोर्सेज होंगे
सारे के सारे अलजेब्रिक सम होंगे, सबका अलजेब्रिक सम करेंगे और वो जो होगा वो टोटल इक्वल के होगा। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो अपन ये लाइन ड्रॉ की है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F0 प्लस डैश डैश डैश। अगर यहाँ 3 फोर्सेज होंगे तो 3 तक लिखेंगे, 4 फोर्सेज होंगे तो 4 तक लिखेंगे, अगर n फोर्सेज होंगे तो n तक लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे F01 की वैल्यूज़ हमने पुट की इस तरीके से। हमारा जो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ है। जहाँ पर 01 होगा तो वहाँ 01 लगा दिया, सेकंड वाले में 10 था तो 10 लगा दिया, 20 था तो 20 लगा दिया, n0 था तो n0 लगा दिया। इस तरीके से कहने का मतलब ये वाले फॉर्मूले हमारे कहाँ से डेवलप हुए, ये वाले फॉर्मूले अपने कहाँ से आए, ये वाले फॉर्मूले आए अपने कूलम्ब्स लॉ से। कहाँ से आए, कूलम्ब्स लॉ से आए। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो सीधी सी बात है कि एक चार्ज होगा, उसके अराउंड एक फील्ड बनेगा, जिस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। तो जहाँ तक वो जहाँ तक वो फिनोमिना ऐसा दिखेगा अपने को, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन जहाँ तक फील होगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नेट, दैट मीन्स रेशियो ऑफ फोर्स एंड Q नॉट, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E. ओके, देयर इज कैपिटल E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस, यानी जो चार्ज पार्टिकल किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, F बोलेंगे। Q नॉट दैट इज़ द टेस्ट चार्ज, यानी जिस फील्ड में हम चार्ज को लाकर टेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, दैट इज़ द टेस्ट चार्ज। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दूसरे नाम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ द न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। चैप्टर नंबर 2 में वोल्टेज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ से यूनिट आती है और अपन वहाँ जरूर डिस्कस करेंगे कि आई कैसे। ठीक है, और डायमेंशन, हम न्यूटन की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2 और कूलम की होती है A1 T1, जो कि हम प्रीवियस टॉपिक में बता चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, M1 L1 T-3 A-1। ओके, और अगला पॉइंट हमारा ये भी था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स दैट हैव डायरेक्शन। ओके, नाउ फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट, हम जो भी हमने डिस्कस किया है हम उस पर क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके जो भी आपका टर्म फर्स्ट में जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें आपके हो सकते हैं इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए। जो मतलब कहने का मतलब मेरा जो उद्देश्य था आपको, जो मेरा मेन एम था वो ये था कि कुछ रिवीजन कराया जाए, साथ में उसके क्वेश्चंस भी कराए जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लास्टिक रोड रबड़, if a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pitch balls suspended nearby, comma then with which figure shows their final configuration। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि एक प्लास्टिक रोड से एक फर को मतलब क्या किया, रब किया, रब करने के बाद उस पर एक चार्ज आ गया, और फिर उस चार्ज को हमने इन दोनों जैसे मैग्नेटिक जो हमारी इस तरीके से ये मतलब डायग्राम में जो दिख रही हैं बॉल्स को टच किया, तो दोनों को टच किया। तो सीधी सी बात, अगर मान लीजिए फर के पास पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक चार्ज है, तो एक के पास भी वही चार्ज आएगा, दूसरे के पास वही चार्ज आएगा। और अभी हमने जस्ट इलेक्ट्रोस्कोप में डिस्कस किया था कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो बी पॉइंट होगा वो करेक्ट होगा। इस लैंग्वेज में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है सॉल्यूशन में भी, कि वहन ए प्लास्टिक रोड इज रब्ड विद द फर, यानी जब फर के साथ प्लास्टिक रोड को रब किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, और जैसे ही हम उस बॉल के साथ उसको टच करेंगे तो वो चार्ज उसके पास चला जाएगा, और जब सेम चार्ज होगा बॉल के पास तो वो रिपेल करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो कैपिटल बी होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, आप लोग चाहो तो ये क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देखे आप सॉल्व कर लो, और जैसे सॉल्व करने के बाद कहते हैं कि सर वीडियो बहुत फास्ट चल रहा है, तो उसमें आप इस वीडियो को पुश कर सकते हो और आराम से अपना सॉल्यूशन देखो, और फिर आप मैच करो कि हमारा सॉल्यूशन सही है नहीं है। तो वहाँ से आपको आइडिया भी लगेगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए कितने सही नहीं हुए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को ज़रूर लिख के बताना कि हाँ सर हमारे ये हमें मतलब इस तरीके से समझ आया नहीं आया, कितने क्वेश्चन सही हुए या नहीं हुए, या जो आपने वीडियोस बनाए हैं इस पे आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं या जो आपका शॉर्ट तरीका है पढ़ाने का वो कैसा लगा, उसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ए कॉम्ब रन थ्रू वन ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, देन दिस हैपन बिकॉज, मतलब ये सब कैसे होता है, यानी एक कॉम्ब को हमने वन ड्राई हेयर मतलब कि सूखे बालों से, कॉम्ब को मतलब कंघी की,
और फिर हमने उसको एक पेपर के पास ले गए, तो वहाँ पे उसमें वो पेपर क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है, क्या होता है। तो फर्स्ट कहता है कि कॉम्ब इज़ द गुड कंडक्टर, हो ही नहीं सकता, कॉम्ब तो कंडक्टर है ही नहीं, ऑलरेडी कॉम्ब तो प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। पेपर इज़ ए गुड कंडक्टर, ऑब्वियसली पेपर भी कंडक्टर नहीं होता, कंडक्टर तो अपनी मेटल्स होती हैं, ठीक है। सी पॉइंट कहता है कि द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कोलम, ठीक है, मतलब कि जो एटम थे वो पोलराइज्ड हो गए। हाँ, ये हो सकता है, पोलराइज्ड हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने कहते हैं ना कि हमने एक चार्ज के पास जब उसको लेके जाते हैं तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, तो वो पोलराइजेशन वाली कंडीशन यहाँ आ सकती है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा आपका, सी राइट होगा, ठीक है। डी पॉइंट कहता है कि इसको पढ़ लेते हैं, द कॉम पोसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तो अभी बात ही नहीं आई, चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चल रही है अभी, तो मैग्नेटिक वाली चल ही नहीं रही, तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि व्हेन ए कॉम्ब रन थ्रू द हेयर वन हेयर, मतलब वन ड्राई हेयर, मतलब कि सूखे बालों से जब कंघी की गई, तो देन कॉम्ब गेट चार्ज, जो कॉम्ब के पास क्या गया, चार्ज। इफ़ इट देन कम्स क्लोजर टू पेपर, जब हम इसको पेपर के पास लेके आते हैं तो इट इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पेपर, बिल्कुल चार्ज को मतलब जो पेपर है उस पर अपोजिट टाइप का चार्ज क्या कर देता है, इंड्यूस्ड कर देता है। द फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन कॉम्ब, और जो उसका फील्ड बनता है कॉम्ब के आसपास का, पोलराइज द एटम इन द पेपर, और पेपर के एटम को पोलराइज, फाइनल ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ चार्ज इट अट्रैक्ट द पेपर। और जब भाई अनदर प्रॉपर्टी होगी, कहने का मतलब अगर कॉम्ब के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो पेपर के पास पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर अपना सी पॉइंट हो गया, फर्स्ट वाले में बी आंसर था, ओके। आवर थर्ड क्वेश्चन इज वन मेटोलिक स्फीयर कैपिटल ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना कैपिटल ए को हमने क्या चार्ज दिया है बेटा, पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है। वेयर इज अनदर आइडेंटिकल मेटोलिक स्फीयर बी इज द एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अब हमने दूसरे जो हमारे पास पार्ट है, यानी ए जो आपके पास बॉल है या स्फीयर है, उसको हमने इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है। देन फर्स्ट कह रहा है कि मास ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन इक्वल, नहीं भाई, कैसे होगा, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दूसरे के पास कमी है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन, किसी के पास ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसके पास मास भी ज़्यादा होगा, यानी फर्स्ट तो हो नहीं सकता। सेकंड कह रहा है कि मास ऑफ ए इज इंक्रीजेस, मास ऑफ ए इंक्रीजेस, नहीं भाई, ए मास पे तो पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव है। फिर कह रहा है कि मास बी इज़ डिक्रीजेस, नहीं भाई, बी पर तो नेगेटिव चार्ज आया है तो उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो मास ज़्यादा होना चाहिए, इसमें आपका डी आंसर सही होगा, दैट मीन्स मास ऑफ बी इज़ इंक्रीज्ड, मतलब कि जो आपका मास है बी का वो इंक्रीज़ हो गया, दैट मीन्स आपका कौन सा आंसर सही है इसमें, डी आंसर सही है, ओके। नाउ हम इसके सॉल्यूशन भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, व्हेन ए बॉडी इज़ नेगेटिव चार्ज, मतलब जब किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया गया है, मोर इलेक्ट्रॉन आर गिवन टू इट, तो उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिए गए, ठीक है भाई, सो इट्स मास इंक्रीजेस, डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो उसका मास कंटिन्यूसली तो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब अगर मान लीजिए वो चार्ज किया भी है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेफिनेटली, जो प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे मास तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच मास ऑफ स्पेयर पी इंक्रीजेस व्हेन इट इज़ गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, इज दैट क्लियर, हो गया, ओके। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज़ ऑलवेज इक्वल, सही बात है कि भाई अगर नेचर का मतलब प्रकृति होती है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज़ ऑलवेज इक्वल। फर्स्ट है आपका हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, नहीं भाई, हाफ इंटीग्रल तो हो ही नहीं सकता, क्या आपको पता है एन इक्वल्स टू तो 1 2 3 4 5 होता है, हाफ तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका आंसर मैच नहीं होता। सेकंड आपका है ज़ीरो। अब यहाँ से अपन बात करें कि ज़ीरो भी कैसे होगा, अपन तो पूछ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो हो ही नहीं सकता। सेकंड नेक्स्ट है आपका स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो सकता है, अपन यहाँ पे बात करें कि सबसे कम जो चार्ज है वो होगा या नहीं होगा, डी पार्ट है, मतलब लीस्ट काउंट चार्ज हो ही नहीं सकता, स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। थर्ड डी है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इज दैट क्लियर। मैंने कहा ना कि एक तरह से देखा जाए तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, ये एन ई को इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, यानी Q इज इक्वल्स टू एन ई रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो इसका एक बार सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं,
कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका, थोड़ा सा उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। 4 पॉइंट का सॉल्यूशन, इफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेकन एज द एलिमेंट्री यूनिट, क्लियर। क्वांटा ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मैंने बताया था अभी जस्ट आपको। सो द चार्ज ऑन बॉडी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन क्यू इज इक्वल्स टू, एनी फॉर्मूला गिवन है, एन इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 2 3 डैश 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 इज द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, इट इज क्लियर, देयर इज आंसर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, आप अपनी कॉपी उठाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, और क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो पहले आप सॉल्व करो, आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन देखो। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा है तो फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द चार्ज ऑन बॉडी इज द 1 नैनो कूलम, यानी नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दे रखा है, बी सी डी दे रखा है। अपन एक क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है। अब मैंने अलग से सॉल्यूशन नहीं लिखा है, आपके पास यहाँ अवेलेबल सॉल्यूशन है, तो यहीं से मैं आपको बताता हूँ। देखो क्यू की वैल्यू रखी है उसने 1 नैनो कूलम, दैट मीन्स 1 नैनो कूलम। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹, तो देखो ये आपका हो गया चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रखा है कि 1 नैनो कूलम क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है आपको, इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और ये पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। कहने का मतलब यहाँ सीधी बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज़ हुआ है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। अब अपने को एन चाहिए तो क्यू इज इक्वल्स टू ई, क्यू की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू रखी, अपन ने इसको सॉल्यूशन सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर क्या आता है 6.25 इंटू 10⁻⁹। कहने का मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सेट होता है, आंसर नंबर बी सॉल्यूशन सेट होता है, क्योंकि इसमें आता है 10⁹, यानी 6.25 इंटू 10⁹। इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर क्वेश्चन इज 6 इज चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1, ठीक है, किसी बॉडी पर चार्ज Q1 है, एंड इट इज़ यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय द इंडक्शन, यानी कोई दूसरी बॉडी है जिस पे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन हम चार्ज लेके आएंगे। चार्ज ऑन द सेकंड बॉडी फाउंड टू बी Q2। अब सीधी बात है भाई, Q1 से ज़्यादा Q2 हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हो सर ऐसे कैसे, भाई Q1 की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज, या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स Q1 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन Q2। सो हम यहाँ पे फिर कह रहा है कि चार्जिंग देन, उसमें रिलेशन कौन सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड, ये तो हो ही नहीं सकता, Q2 कम थोड़ी हो सकता है भाई। जब तक Q2 कम नहीं होगा, ये Q1 ज़्यादा होगा तो ग्रेटर, मतलब लेस तो तब आएगा जब Q2 ज़्यादा हो Q1, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी ये सॉल्यूशन तो बैठेगा ही नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि Q1 कम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ ये सही कह रहा है, यानी इक्वल भी हो सकता है 1 भी। तो अब देखो ए और डी में से अपने को चूज़ करना है, लेकिन अगर दोनों में से देखा जाए, देखो अब यहाँ पे जो आपका ए पार्ट है वो भी कुछ ना कुछ सही कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब अपन देखते हैं ये बी और डी, तो बी और सी तो गलत कर रहा है, लेकिन डी और एम एस अपने को चूज़ करना है। तो डी इज़ द मोर ग्रेटर, कहने का मतलब डी पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? सो देयर इज़ आंसर विल बी डी, राइट आंसर इज़ डी एंड ए इज़ रॉन्ग। अगर यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह कुछ और होता, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही था, अपना ए वाला सही था। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे सॉल्यूशन में भी लिख रखा है आपका कि आफ्टर चार्जिंग बाय द इंडक्शन द चार्ज ऑन द अदर सेकेंड बॉडी विल बी लेस और ऑलमोस्ट इक्वल, या तो लेस होगा या ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन सही होगी, ये वाली कंडीशन सही होगी, यानी आंसर आपका कौन सा होगा, डी होगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 इज फोर्स एफ बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन दैम। कहने का मतलब फोर्स आर के साथ किस तरीके से वेरी करता है भाई, एफ प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, पढ़ा है ना अपन ने, एफ प्रोपोर्शनल 1 क्या होता है बेटा, r² होता है। तो 1/r² का ग्राफ तो यही बनता है, बाकी ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। और वहाँ पे अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा 1/r², तो वहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। कहने का मतलब जब 1/r होता है तो ग्राफ इस तरीके से होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस r। ओके, सॉल्यूशन में भी लिख रखा है कि f प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन होगा सी करेक्ट है, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मैंने कहा ना कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को पढ़ते हो तो आप उसके फॉर्मूले के साथ में यूनिट को जरूर ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन एम
या एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन आर, क्योंकि परमिटिविटी को हम सिंपल इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फिर क्वेश्चन कैसा है, मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा लिख रखा है मैंने, मैं बता दूं। एफ इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की अपने को क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो बाकी को ट्रांसफर कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यों किसके साथ चले गए, एफ के साथ चले जाएंगे, मतलब एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से निकालना है तो ठीक है। ये इस तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन, ये मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ Q1 Q2 क्या हो गया, C/C, 4 पाई का होता ही नहीं है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद F और आर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन होता है, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is 9. The force of interaction between two charges Q1 is 6 microcoulomb and Q2 is 2 microcoulomb is 12 न्यूटन। यानी दो चार्जेस हैं जिनके बीच में आपका जो फोर्स है वो 12 न्यूटन है। इफ़ चार्ज Q इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइक्रोकुलाम इज एडेड टू ईच ऑफ चार्ज, यानी -2 कूलम अपन ऐड किया, इसमें -2 कूलम ऐड किया तो 4 कूलम हो गया, इसमें -2 कूलम किया तो ये 0 हो गया। और ये 0 होते जब किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वैसे ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो सिंपल है ये तो। भाई Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, अब कह रहा है कि इसमें -2 कूलम ऐड करो, इसमें को ऐड किया, भाई अगर प्लस होता तो 8 हो जाता, लेकिन यहाँ तो -2 कूलम ऐड करना है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, जैसे देखो यहाँ कर रखा है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। सॉल्यूशन भी है, आप लोग देख लेना, ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज इक्वल Q एंड Q, मतलब दो आपके Q चार्ज है, उनके बीच में हमने एक स्मॉल q को प्लेस्ड करना है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्वलिब्रियम, ये कंडीशन दे रखी है कि जो आपका सिस्टम है वो क्या है, इक्वलिब्रियम कंडीशन में। दैट मीन्स Q एक ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है जहाँ से आपका सिस्टम है, तो Q किसके इक्वल होगा, तो इसको सॉल्यूशन मैंने रखा है यहाँ पे करके। तो हमारे दो चार्ज लिए हमने, एक तो कैपिटल Q ये मान लिया, एक कैपिटल Q ये मान लिया। अब एक Q ले लिया, इसके डिस्टेंस यहाँ पे x, यहाँ पे x। अब अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि F1 + F2 इज इक्वल्स टू 0, तो F1 को अपन F2 को उधर ले जाए तो -2 हो गया। अब F1 क्या है कि फोर्स ऑन, ये ऑन लिखा हुआ है भाई, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q चार्ज, मतलब कैपिटल Q पर स्मॉल q चार्ज की वजह से फोर्स है, और फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q चार्ज, मतलब Q पर कैपिटल Q की वजह से चार्ज है। तो यहाँ फोर्स F1 की जगह तो अपन इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। और F2 की लिखेंगे तो दोनों दूसरी वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन 2x स्क्वायर। सर ये आया कैसे, ये कूलाम्स लॉ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जो आपका ये चार्ज था, एक तो इसकी वजह से निकाल लिया, मैं इसको दोबारा रिवाइज करके बताऊँ आपको अच्छे से। देखो इस वाले चार्ज पर एक तो इसकी वजह से निकाल लिया, तो ये तो आ गया ये। अब इस वाले चार्ज पर एक इसकी वजह से निकाला, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले को अपन ने इस इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो आपका ये सॉल्यूशन आया। इसको सॉल्व किया, जो कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, स्मॉल q इज इक्वल्स टू -Q/4। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, B होगा, यानी -Q/4। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, B होगा, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए किए, कुछ रिवीजन किया, कुछ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे मैंने करवाए। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराएंगे, और जो रिमेनिंग चैप्टर है उसका रिवीजन करवाएंगे, और अगर उसमें नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट पार्ट हम तैयार करेंगे, ठीक है। आप सबको ये वीडियो कैसे लगी, आपको ये सब कैसा लगा, फीडबैक में ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली हम आगे वाली जो वीडियोज़ है उसमें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी आपको इश्यूज़ लगता है या फिर कुछ आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ड्रॉप द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।